So today we have an eminent person, Dr. Raja Vashishtha sir. So before going to introduce him, we will have to inaugurate the program with the president. As a part of transitional curriculum, today we have an eminent person, Professor Raja Vashishtha sir, Raja Vashishtha Tripathi sir, who was born on October 1st, 1957 in Tanda village in Gorakhpur. He obtained his BSc degree from the Gorakhpur University with the highest distinction in 1975, and he did MSc in biochemistry and was awarded the BHU Gold Medal in 1978. He received his PhD in 1982 under the mentorship of late Professor Debi Prasad Barna at BHU for his work in the area of protein synthesis. His area of research interest involved molecular genetics of lipid disorder and vascular inflammation, molecular and cellular therapies, evolution of catalytic function, clinical applications of omics and nanotechnologies, and health consequences of selfish genes. And he has world-renowned scientist known for his seminal research on molecular genetics of vascular inflammation. He discovered genetic aspects of lineage, commitment of stem cells to white blood cells, and pathological process leading to their migration, growth, and survival inside the vessel wall. Using a combination of biochemical, molecular, and genetic approaches led the way to establish the prominent role of inflammation in the pathogenesis of heart and renal diseases.
Dr. Raja Vashisht sir has extensive experiences as Director of Research Laboratories and Related Administration by implementing research program funded by the National Institute of Health, American Health Association, American Diabetes Association, Eisner Foundation, Philip Morris External Research Program, Department of Biotechnology, Department of Science and Technology, Indian Council of Medical Research, Council of Scientific and Industrial Research, Government of India. At the time of joining as a senior professor at the Molecular Biology Unit, Institute of Medical Sciences in the BHU. And sir has felt honored to work towards revitalization of the dream which Professor Barna had. It is like giving Guru Dakshina to a mentor who decided his life and worked so intensely to establish a center of excellence in molecular biology in BHU. And sir has already started a structured science awareness campaign in rural India, simplifying the complex concepts of the modern science to villages. He believes grassroots awareness is critical in changing the current condition that often promotes unhealthy living conditions. And sir is collaborating with former President Dr. APJ Abdul Kalam, has directed a science awareness campaign in rural India and has participated and collaborated in a broad range of science education projects. An account of Dr. Raja Vashisht sir accomplished can be obtained through the World Wide Web using either Google Scholar or PubMed research site. One can also search using keyword Raja Vashisht on Google Web also. So we are happy to invite you, sir, in the Guru Goddess Institute of Medical Sciences, Ayurveda colleges. And now I am invite Dr. Manjunath NS Principal, GJIMS, to felicitate our chief guest, Raja Vashisht. शुरू किया जाए। आप लोग किस भाषा में समझना चाहेंगे? भोजपुरी बोलने वाले कितने हैं? कितने? कोई काउंट कर पाएगा? कम से कम 10-20 तो होंगे ही। ओके, देवरिया के कितने? देवरिया कोई नहीं है? ओके, आपको देवरिया वाली भोजपुरी बोलनी पड़ेगी है? और बिहार के कितने लोग? बिहार की भोजपुरी वाले? भोजपुरी आ रहा है उधर भोजपुरी बेल्ट। आप लोग अभी सोच रखिए, भोजपुरी की परिभाषा या लक्षण बताना पड़ेगा। मंजुनाथ जी, मैं वो साइंस से इंटीग्रेट करूंगा और मैं जितना समय है मेरे पास 1 बजे तक, इसको अगर आप लोग अंग्रेजी में ऐसा करते हैं, खिचड़ी पकाते। खिचड़ी अन्न की खिचड़ी नहीं, वो तो पकती रहती है, घर पे खाते ही है। आज भाषा की खिचड़ी पका, तो उसमें अंग्रेजी चाची आएंगी है? और संस्कृत दादी आएंगी, भोजपुरी माई आएंगी। फ्रेंच नहीं आएगी और जर्मन भी नहीं आएगी। तो अभी ये खिचड़ी थोड़ी सी सुपाच्य खिचड़ी हो। सुपाच्य खिचड़ी का समझते हो मतलब? वो खिचड़ी जो पच जाए, और खिचड़ी पचने का ही भोजन। सो
ऐसा है कि कस्टमरी हो गया है अंग्रेजी में बोलना। मैं यहाँ बच्चों के बीच में जाता हूँ तो सब डाउट करते हैं, अगर मैं भोजपुरी बोलता हूँ तो कहते हैं अंग्रेजी बोल के दिखाइए, तो मुझे मजबूरन अंग्रेजी बोलना पड़ता है। और मैं आप लोग को बता दूं, मैं लंबे समय तक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में रहा हूँ, हार्वर्ड में रहा हूँ, और जो दुनिया के जाने वाले विश्वविद्यालय हैं, एक चीज मैंने किया है कि अपनी भाषा को बचा के रखा। हाँ? और दादी को भी पूरी तौर पे निष्ठा के साथ में जीना चाहता हूँ। हाँ आचार्य जी प्रणाम। हेलो आचार्य जी, ये संस्कृत के व्याकरणाचार्य हैं, काशी से कॉल कर रहे हैं। मेरी प्लानिंग कुछ नहीं है, मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, तो लेकिन राजनीतिकरण हो जाता है मेरा। तो आप लोगों से जितना समय है इसमें एंजॉय करते हैं। मुन्ना भाई एमबीबीएस कितने लोग देखे? हाँ, सोचो कोई मरीज डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहे आइए आइए बैठिए और ये गरम गरम इलायची वाली चाय पीजिए, और इधर कुछ बढ़िया समोसा है, और इधर काजू की कतली बर्फी है, बैठिए फीस नहीं लेना। उसकी आधी बीमारी खत्म। डॉक्टर की वो जादू की झप्पी वाली जो बात है ना, अगर वो शुरू हो जाए तो बीमारी आधा खत्म। प्लेसिबो वही काम करेगा। आप लोग सभी इंटरमीडिएट हो, मतलब 12वीं पास करके आए हो। सोचिए आप लोग कितने यंग हो। मैं तो राष्ट्र इस राष्ट्र की संस्कृति और विदेशी संस्कृति के चक्की में इतना पिसा हूं कि बाल पक गए, झड़ गए। लेकिन मैं जो मेरे जीवन का अमृत है उसे मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। और गोरखपुर का रहने वाला हूं तो शर्मा जी का निमंत्रण में स्वीकार करने में मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं। मंजुनाथ जी से मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। सो आई फील honored and privileged to be here in this institution that has been created for Mahayogi Gorakhnath. मैंने एक बार योगी जी से कहा था कि आपका तो कान यहाँ लटका हुआ है। मैं लटकाया नहीं हूं, लेकिन मैं उसी रास्ते का राही मैं ही हूं। तो आप लोग पैसा कमाने के लिए पढ़ रहे हो, कुछ अधिकार से नहीं, नहीं नहीं जरूर होगा, इसको नकार नहीं, ये नकार नहीं पाओ। और ये देखिए, जेनेटिक्स में जेनेटिक्स कितने लोग जानते हैं? कितने लोग पढ़े हैं? डीएनए का नाम सुने हो ना? हाँ, डीएनए। डीएनए आपकी शरीर का उपयोग करके आगे बढ़ना चाहता है। तो आपकी शरीर एक, किसी की मर्सिडीज बेंज होगी, किसी की स्कॉर्पियो होगी, किसी का वो जाइलो होगा, किसी का नेक्सान होगा, लेकिन सबके अंदर वो डीएनए बैठा हुआ है। मैं वहीं से शुरू करता हूं। तो आपकी शरीर का निर्माण जो है वो एक स्वार्थ के नाते हुआ है। वो मनुष्य जिसकी निर्माण ही स्वार्थ पे हुआ है, अगर वो स्वार्थी नहीं होता है तो ठीक नहीं। और एक होता है कि स्वार्थ का उल्टा दिशा, जिससे स्वार्थ गहना जाए। गहना जानते हो? अरे गहना पहनी है भाई वो, तो उसको जब स्वार्थ गहना जाता है तो क्या होता है? उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, यानी स्वार्थ गहना गया है, यानी बहुत ज्यादा स्वार्थ हो गया। हमारे देश में ऋषियों ने इस जो नैसर्गिक मनुष्य की प्रवृत्ति है
इसको एक दिशा दिया, उसमें परार्थ भाव से परमार्थ में जाने की, और पश्चिम वालों ने स्वार्थ को अपने जीवन का उद्देश्य बना दिया। तो वो हर रोज विज्ञान का जो माध्यम मिल गया है, अविद्या जनित विज्ञान, वो झुंझुने पैदा करता है, खिलौने पैदा करता है, ये कार वो कार, वो तरह तरह के खिलौने। बाजार क्यों है? बाजार क्यों इतनी समृद्ध हुई है? वो किस लिए है? कौन बताएगा? बाजार किस लिए? अभी जाएंगे, गोलघर किस लिए बना हुआ है गोरखपुर में? अच्छी चीजें बेचने के लिए, महंगी चीजें बेचने के लिए। कैपिटलिज्म कितने लोग जानते हैं? कैपिटलिज्म, मुक्त पूंजीवाद, पूंजीवाद कितने लोग जानते हैं? हाँ, पूंजी एकत्र हो, बिना पूंजी के बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। ये लोगों की पूंजी है जिसको योगी जी आज कंट्रोल कर रहे हैं। इस रात बन गया, अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात। और आप लोग भाग्यशाली हो कि आप लोग ऐसी विधा में जा रहे हो जिससे यह राष्ट्र पुनः विश्वगुरु के रास्ते पे चल पड़ा। और सौभाग्य से आज जो प्रशासन के शीर्ष पे बैठे हुए हैं वो इस बात को समझते हैं। तो मैं जीन वाली बात कह करके फिर आपके जो क्लासेस चलेंगी, चीजें सीखेंगे, उसके बारे में बताना चाहूंगा। लेकिन आप लोग कभी भी मुझे इंटरप्ट कर सकते हैं, क्योंकि समय मेरे पास नहीं कि मैं सबसे बात करूं, इंडिविजुअली सबका नाम जानूं। बहुत कुछ लेके आया हूं जिसको मैं बताना चाहता हूं। तो मेरा उद्देश्य ये है कि फैन चल पाएगा क्या? एक चलाइए। हाँ, इसमें एयर कंडीशनर नहीं लगा, मजबूरी आ गई है हम लोगों की। अब पहन लिया हूं मैं जैकेट, खत्म। खोल दीजिए, इसको खोल दीजिए। कोशिश करते हैं कि हम, जो आज का टॉपिक है, करंट ट्रेंड्स इन इंटीग्रेटेड और इंटीग्रेटिव मेडिसिन, इसको ठीक से समझ जाए। क्योंकि आयुर्वेद जो है उसके केंद्र में है। आयुष में तमाम ऐसे विद्याएं हैं जो सब इंटीग्रेटेड मेडिसिन के पार्ट हो गए। और इंटीग्रेटेड मेडिसिन को मैं बड़े सीधे शब्दों में समझाना चाहूंगा कि बाजार मनुष्य के सुख के लिए बनी है कि आपको अच्छे तेल फुलेल क्रीम पाउडर मिल जाए, बढ़िया मिठाई मिल जाए, चौधरी स्वीट हाउस का या कोई होगा और गणेश होटल है। हा? तो बाजार इसलिए बनी है कि आपको खुश करना चाहती। हॉस्पिटल क्यों बने? हाँ, आपको खुश करना चाहते हैं कि आपकी तबीयत खराब है, वो दवा देंगे और आप ठीक हो जाएंगे। न्यायालय किस लिए बना हुआ है? आपको न्याय देके खुश करना चाहिए। ये राजनीति क्यों बनी हुई है? कि सभी लोग खुश रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः। हॉस्पिटल सर्वे सन्तु निरामया। तो उद्देश्य क्या है? मनुष्य का सुख और शांति, उद्देश्य यही है। चाहे कितना ही बड़ा आदर्श लगे ये, लेकिन है केंद्र में यही। और कितना मनुष्य सुखी है आज, कौन कौन हाथ उठाएगा? मनुष्य को कितना सुख मिल रहा है आज, इस पे कौन कॉन्फिडेंस के साथ कहेगा कि 100% है? नहीं है, नहीं है। क्योंकि रास्ता इतना मकड़जाल में फंस गया है कि ठीक से रास्ता ही नहीं मिल रहा। अरे मुझे ही नहीं रास्ता में, मैं आ रहा था सुबह सुबह, वो ब्लॉक किए हुए हुआ, तो घूम के आना पड़ा। जिंदगी में आपको भी बहुत घूमना पड़ेगा। केंद्र में मनुष्य का सुख है, और बिना इंटीग्रेटेड वे में
आप इस सुख के सभी कोणों को नहीं देख पाएंगे। एक बिंदु को देखने के लिए कितना दृष्टिकोण चाहिए, कितने बताएंगे, हम बताइए। 360, और सभी देख पाएंगे 360 डिग्री? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? चिड़िया बनना पड़ेगा, ऊपर से उड़ के देखेंगे। उसको कहते हैं विहंगावलोकन, और एक और शब्द है सिंहावलोकन। कितने लोग जानते हैं सिंहावलोकन? शेर जब देखता है तो उसकी दृष्टि जो है दूर तक अपने शिकार को देखती है। उसी तरह किसी बिंदु को देखने के लिए आपको कम से कम 180 अपनी और 180, भाई पीछे आंख तो है नहीं तो उसे तो देख नहीं पाएंगे, लेकिन अपने ज्ञान से आप 180 डिग्री का क्षेत्र देख सकते। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो केंद्र में मनुष्य का सुख है उसको इंटीग्रेटेड मेडिसिन, उसमें मैं बताऊंगा और क्या 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 आ रहा है, और उसमें प्रमुख रूप से आयुर्वेद कैसे उसका उपयोग करके मनुष्य को सुख दिया। सर पहले तो हमने नारा लगा दिया सर्वे भवन्तु सुखिनः। जरूरी है, हमारे ऋषियों ने बताया कि हमारा यही है नारा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो जाए। कोई इसमें दुखी होना चाहता है? कोई हाथ उठाए। हमारे देश में ऐसे कवि लोग हैं, किसी कवि को जानते हैं जो दुख को ही महानता देता है? मैं दू 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 क्या दुख भरी बदली, महादेवी वर्मा का नहीं है, मैं नीर भरी दुख की बदली, पढ़ी हो? उन्होंने लिखा छायावाद, किंतु जीवन कितना निरुपाय दिया है देख नहीं संदेह। किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद। सफलता का यह कल्पित गेय। देखिए वो छायावाद, निराशावाद। हमारे यहाँ तो निराशा को भी अपने जीवन में उपयोग किया गया है। उसको कौन सा योग कहते हैं? अर्जुन को हुआ था ये, वो कौन बताएगा? विषाद योग। विषाद योग, जब आप दुख की पराकाष्ठा पे चल जाते हैं तो वह योग निरुद्ध हो जाते हैं। दर्द की दवा है हद से गुजर जाना, दुख का कुछ है ना, इसे उर्दू में है। उर्दू को नहीं जाती, सुनी नहीं हो तुम लोग? दर्द का हद से गुजर जाना है दवा हो जाना। कोई दर्द हद से गुजर जाए तो दवा हो गई, या तो मृत्यु हो गई, वो भी एक दवा है। तो आइए बात करते हैं कि कैसे मनुष्य के सुख को प्राप्त करने के लिए आप अपना शेष जीवन, अभी तो पढ़ाई करेंगे आप, इसमें कैसे आयुर्वेद के रास्ते चल के, यानी आयुर्वेद का राजमार्ग उपयोग करते हुए पूरे जो मनुष्य के सुख देने के संसाधन हैं, वह भी मेडिकल के अंतर्गत, उसको कैसे उपयोग में ला करके मनुष्य को सुखी कर। जो मॉडर्न मेडिसिन के लोग हैं उनको ओथ दिया जाता है, शपथ, कि वो इसको हिपोक्रेटिक ओथ कहते हैं कि हम मनुष्य के स्वास्थ्य की चिंता करेंगे, उसकी सेवा करेंगे और उसे सुखी बनाएंगे। और हमारे ऋषियों ने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, और वह है कि सबका भद्रांग पश्यन्तु। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आता हूँ। कितने लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय का नाम जानते? सभी को जानना चाहिए। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ इस यूनिवर्सिटी का, लेकिन मैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी से आता हूँ जिसका उद्देश्य ही है, क्या लिखा हुआ है, विद्या अमृत मश्नुते।
इसका मतलब कौन बताएगा? कोई बताए? विद्या अमृतमश्नुते। हाँ, विद्या अमृत है, विद्या अमृत है। अगर ज्ञान है आपको, तो जो सांप का जहर है ना, उसको भी अमृत बना देंगे। कैसे बनाएंगे? अरे भाई, सांप का जहर इकट्ठा कर लो, एंटीवेनिन बना लो, और उसके बाद कोई सांप काट लिया किसी को, तो उससे उसको लड़ा दो उस शरीर के अंदर, तो बच गया ना, अमृत मिल गया कि नहीं उसको? तो अमृत नहीं है, सांप का जहर अमृत है। हाँ, वो बात को गलत समय पे काटेगा आपको, तो आप मुक्ति मिल जाएगी आपको। तो विद्या अमृत मश्नुते, मैं उसी को लेकर के चलूंगा। और यहाँ जो टॉपिक है, जिसको शर्मा जी ने मुझे सजेस्ट किया, कि करंट ट्रेंड्स इन इंटीग्रेटेड और इंटीग्रेटिव, दोनों एक ही है, मेडिसिन। तो मैंने इसमें कई चीजें मिलाया है, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी, जिसको मैं खिचड़ी पकाना कहता हूँ। और थोड़ा कठिन है। मैंने एक प्रोफेसर लालजी सिंह से कहा था कि भोजपुरी में लेक्चर दीजिए डीएनए पे। हाँ, कठिन तो भाई, कठिन तो हुई, लेकिन करेक्ट पड़ी। हाँ, और दूसरी स्लाइड को हम ही बदल रहे हैं, आप बदल? अच्छा, ये वाला, अच्छा अच्छा ठीक। ये मैंने अभी सोशल मीडिया पे अपने साइट पे पोस्ट किया था। अच्छा, हिंदी में ही बोल रहा हूँ, अंग्रेजी में अगर आप लोगों की डिमांड हो तो उसी पे चलूं। समझ में आ रही मेरी बातें? कोई है जो नहीं समझ रहा है? जो नहीं समझ रहा है, बुरा मत माने, मैं और कोशिश करूंगा समझाने के लिए। तो गर्भ न करीबा सहजे रहिबा, इसको कितने लोग समझ रहे हैं? हाँ, आप बताइए क्या समझ रहे हैं? गर्भ न करीबा सहजे रहिबा। गर्व नहीं करेंगे, घमंड नहीं करेंगे, सहज रहेंगे। सहज रहने मतलब, अगर ये हृदय कह रहा है मुस्कुराओ, तो मुस्कुरा दो ना भाई। अगर हृदय कह रहा है कि कुछ करो ऐसा, तो करिष्ये वचनम तौ। कौन कहा था? करिष्ये वचनम तौ। जब अर्जुन मोहग्रस्त हो गए थे, तो श्री कृष्ण ने उनको सब कुछ बता करके उनके मोह का नाश किया। और उसके बाद जब सब स्थिति स्पष्ट हो गई, तो अर्जुन कहे कि करिष्ये वचनम तौ। अब जो आप कहेंगे हम वही करेंगे। तो जब हृदय में शिव को बैठा लेंगे आप, भाई शिव, कृष्ण, राम सभी आकर्षक रूप है, तो मैं शिव को ही बैठाता हूं कि भोलेनाथ की नगरी में रहता हूं, वो त्रिशूल लिए भी घुस जाते हैं मेरे हृदय में। तो जब वो कहते हैं मुस्कुराओ, तो मुस्कुरा देता हूँ। तो करिष्ये वचनम तौ, जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा। हाँ? कबीरदास को कितने लोग जानते हैं आप? कबीरदास बहुत बड़े योगी थे। कि कबीरा मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर। अरे आज की गंगा उतनी नहीं निर्मल है। आगे आगे मैं चलूं, पीछे पीछे हरि चलाया, कुछ ऐसे। ये बड़ा अच्छा है कि मन इतना निर्मल हो गया है कि मैं आगे आगे चल रहा हूँ, पीछे पीछे हरि आ रहे हैं। अब सोचिए, काशी में आप किसी दिन जा रहे हो, पैदल ही जा रहे हो गंगा किनारे, और पीछे लग रहा है कि आ रहे हैं भोले बाबा, त्रिशूल थामे का हो, राजा वशिष्ठ कहाँ जाता हो। और ऐसा, ऐसी अनुभूति हो जाए। अच्छा, आप लोगों को सपने में धनवंतरी आ जाए, और उसमें कहें, हाँ बताइए श्रीकांत जी, कैसी पढ़ाई लिखाई चल रही? कोई श्रीकांत है इसमें? नहीं। कोई रामानुज है? कोई अवैद्यनाथ है? कोई खताऊ है यहाँ?
कोई एक नाम बताओ, कमलाकर है? हाँ, श्री कृष्ण। अब देखिए हमारी टेस्ट ले रहे हैं आप। राम खिलावन, राम कठिन, राणा प्रताप, राम कृपाल, राम गोपाल। कहाँ है? आइए राम गोपाल जी हमारे पास आइए। राम गोपाल जी आइए आइए, आप आ जाइए। राम गोपाल जी हमारे साथ, जब तक मैं खड़ा रहूंगा हमारे साथ खड़े रहेंगे। राम गोपाल जी आइए, आज हम दोनों लोग पढ़े, हमारे पास रहिए, इधर ही आइए। तो राम गोपाल जी हैं, देखिए इनका नाम बड़ा, कितने कितने नाम लेने के बाद इनका नाम किसी ने सुझाया तब आया है मेरे दिमाग में, वरना जो नाम मैं, मंजूनाथ कोई है इसमें? राजा वशिष्ठ कोई है इसमें? राजा वशिष्ठ तो ऐसा नाम है कि इंटरनेट पे भी बहुत कम मिलेगा। वो इस नाम को बनाने, मैंने खुद अपना नाम धरा है, मेरा नाम कुछ और था, धरा लड़ लिया गया क्योंकि गोरखपुर में पैदा हुआ। अब जा गोरखपुर के कितने लोग हैं इसमें? ठीक है, तो आप लोग घर का वो खिचड़ी खाते ही होंगे, बढ़िया खिचड़ी खाइए। और देवरिया के तो एक, केवल एक ही है देवरिया के। हाँ, और देवरिया के आप भी हैं, मिश्रा जी है, वर्मा साहब, ठीक है। तो मैं तमाम लोगों को जानता हूँ, जो उसमें से मिश्रा है, शुक्ला है, और कसौधन है। तो मैं वो जातिवादी दृष्टिकोण से नहीं देखता हूँ, वो जेनेटिक्स के दृष्टिकोण, उसको मैं बुरा नहीं मानता हूँ, उससे आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि वाई क्रोमोसोम किसका है, वो एक्स क्रोमोसोम किसका है, हा? तो उससे लीनियज का पता चलता है। तो योगेश्वर दो लोग हुए हैं सनातन संस्कृत में, योगीश्वर और योगेश्वर। योगेश्वर जब कहा जाए तो उसमें आपको क्या दिखाई देता है? योगीश्वर यानी जो ईश्वर योगी हो, और वो कौन है? भोले बाबा, शिव। और योग जो जानता हो, ईश्वर जो योग का ईश्वर हो, वो श्री कृष्ण। और उसके बाद अगर सनातन संस्कृति में कोई एक महायोगी पैदा हुआ है, तो उसके नाम के संस्थान में आप बैठे हुए, गोरखनाथ। इन तीनों ने सनातन संस्कृति के एक ऐसी विधा को जन्म दिया और आगे बढ़ाया, जिससे आज पूरी भारत भूमि जो है योग का तीर्थस्थली बन गई। साहब, पूरा विश्व में जो आज विश्व योग दिवस मनाया जाता है, इन तीनों महापुरुषों को, मैं उसमें ईश्वर है भाई, ईश्वर भी को तो हमने आंख नाक कान दे दिया है, तो त्रिशूल थमा ही दिया है वो भोलेनाथ को। ये तीनों योग को, और योग मैं ऐसा प्रिडिक्ट करता हूं कि आज से 50 साल बाद जब सभी दुनिया के लोग योग को अपने जीवन में उतार लेंगे, तो वो मेडिसिन हो जाए। इस नाते, क्योंकि योगी जी के भाई यूपी में काबा बाबा ना, तब यूपी में काबा बाबा बा ना, तो उसमें योग को तो अपने जीवन में उतारिए ही आप। अगर आप योग महायोगी के विश्वविद्यालय में, महायोगी के आयुर्वेद संस्थान में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो आपको योग को समझना, तो ये तो आपकी सबसे बड़ी श्रद्धा का फूल होगा। योग को जीवन में उतारिए, क्योंकि ये मेडिसिन बनने वाली। वो 50 साल कोई ह्यूमन लाइफ में बहुत बड़ा नहीं होता है, आप शायद बूढ़े हो जाएं लेकिन उसके बाद जो संतानें आएंगी वो योग को उसी तरह से लेंगी जैसे कि खाना पीना। तो योग को करिए। और एक तो और सबसे बड़ा फायदा महायोगी गोरखनाथ
में ये होता है कि ये खिचड़ी पसंद करते। खिचड़ी, जब कोई चीज बनाने से मन कतराए या आप बीमार हो जाएं तो डॉक्टर क्या सलाह देता है? खिचड़ी खाओ, खिचड़ी खाओ। यानी खिचड़ी जो है सरलता से बन जाती है और पच जाती है। लेकिन कभी कभी खिचड़ी में कांटे और कंकड़ पड़ जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो सांस्कृतिक खिचड़ी पकी है उसमें कांटे और कंकड़ भी तो आ गए हैं। तो ऐसी खिचड़ी खाएंगे जिसमें कंकड़ और कांटे हैं तो वो थोड़ी सी पचेगी नहीं। तो कोशिश करते हैं कि जो अन्न यूज करें आप खिचड़ी में उसमें कांटे और कंकड़ लो। तो मेरे जीवन में ऐसी खिचड़ी पकी है, और सोचिए मैं कहाँ कहाँ से दुनिया के कम से कम 25-50 देशों से घूमते घामते और आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय में गुरुदक्षिणा दे रहा हूँ। और मेरा कर्म क्षेत्र गोरखपुर है। गोरखपुर का दक्षिणांचल एक चिल्लूपार जगह है। चिल्लूपार का नाम कितने लोग सुने हैं? चिल्लूपार में कौन रहता है? हरिशंकर तिवारी रहते, हमारे चचा। समझ रहे? और गोरखपुर में भी कभी इसका नाम माफियाओं के नाम पे लिया जाता है। तो गोरखपुर का अपनी विशेष पहचान है। योगी जी उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये गोरखपुर तो गोरख बाबा के नाम पे ही है ना, और उनको खिचड़ी पसंद है। तो जीवन में जो खिचड़ी पक रही है, अगर वो अन्न की खिचड़ी है तो ठीक है, अगर आपके जीवन मूल्यों की खिचड़ी है तो उसको महायोगी को समर्पित करके आप मनुष्य के कल्याण के लिए प्रार्थना करिए। तो मैं इसी में यही लिखा हूं कि मेरे जीवन में जो खिचड़ी पकी है उसको मैं महायोगी को चढ़ा रहा हूं और प्रार्थना कर रहा हूं कि सभी मनुष्यों का कल्याण। ठीक है? अच्छा, आगे आगे। तो ये इस स्लाइड में मैंने बनाया था कि इस देश में खिचड़ी के कई रूप हैं। भारतवर्ष में खिचड़ी के बहुत सारे रूप हैं। खट्टी खिचड़ी, मीठी खिचड़ी, हाँ, उसमें पूरा ये आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगी कि बेटर इंडिया, हाँ। और खिचड़ी के कई रूप हैं और खिचड़ी बाबा को पसंद है। तो आज हम लोग लैंग्वेज की खिचड़ी बनाएंगे। मैंने लिखा आज चढ़ाएंगे खिचड़ी इनको। तो उसमें क्या होगा? अंग्रेजी मिली होगी, हिंदी मिली होगी, संस्कृत मिला होगा और भोजपुरी के छौंक लगाएंगे उसे। ठीक है? अच्छा, मैं अब तक जो बातें कर रहा हूं उसमें कोई बोर हो रहा हो तो बताए। जो बोर हो रहा है उसको मैं उसको कंसीडर करना चाहता हूं। ओके, हाँ, आज बात करते हैं इंटीग्रेटेड मेडिसिन का। तो अंग्रेजी में बात करेंगे तो लिखा हुआ है इसमें। अब उसको हिंदी में मैं बदल करके अपने ढंग से आपको बताना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, अंग्रेजी में अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। इंटीग्रेटेड को सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि कई विधाओं की इस देश में या विश्व में, चाइनीज मेडिसिन है, यूनानी मेडिसिन है, और भी कई तरह के नाम हैं, एलोपैथी है, और कम से कम अभी आगे आएगा 5, 6, 7, 8 तो है ही हैं। आज के जमाने में लोगों को ये पता चल गया है कि केवल एलोपैथी अप्रोच से ही मनुष्य सुखी नहीं रह सकता है। दूसरे अप्रोच भी कंसीडर करो। और भारत में, हमारे देश में जो किचन है आपका, किचन में कितने लोग जानते हैं धनिया, जीरा, मंगरेल? सभी लोग जानते हैं। कितने लोग छुए हैं धनिया को? और आप लोग नहीं छुए हैं? और जीरा छुए हैं कभी?
मगरैल छुए। सोंठ क्या होती है? सूखी अदरक, उसको सोंठ कहते हैं। ऐसे ही नाम दे दिया गया है, सूखी हुई चीज का कुछ दूसरा नाम दे दिया। ये सब आपके किचन में होता है। तो ये बताओ, ये किचन क्लिनिक हुई कि नहीं हुई? अरे सुबह सुबह जो आप लोग इडली खाते हो, डोसा खाते हो, रोटी खाते हो, पराठा खाते हो, या आलू की सब्जी तो खाते ही होंगे कभी कभी। रोज खाते हैं ना? जरूर खाते हो। ठीक है, रोज खाते हैं। मैं भी रोज खाता हूँ आलू की सब्जी। अच्छा, तो आलू की सब्जी बनाने में कड़वा तेल होता है, right? कुछ लोग घी में खाते होंगे, जो जो बड़े संपन्न हैं। अरे देखिएगा, संपन्नता खुद एक बीमारी है। अभी मैं बताऊंगा। जो जो ऑप्युलेंस है, ऑप्युलेंस इज ए रिस्क फैक्टर फॉर डिजेनरेटिव डिजीजेस। और डॉक्टर साहब तो प्रिवेंटिव मेडिसिन के प्रोफेसर हैं, मैं भी समझाऊंगा सबसे बड़ी मेडिसिन क्या है, बीमार ना होना। और उसको क्या नाम दे दिया गया है? प्रिवेंटिव मेडिसिन। लेकिन जो दुनिया में जगह बना दी गई हैं, नाम तो कुछ और है, काम कुछ और हो रहा है। यानी अमेरिका में एक जगह है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, और वहां सारी बीमारियों पे शोध होता है। एक्चुअली उसका नाम होना चाहिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजीज, यही होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। अब भाई, कुछ होता है ना, कभी कभी सच्चाई बोलने से कठिनाई आती है, तो उसको लोग अलग ढंग से बोलते हैं। हमारे ऋषियों को, मनीषियों को, सुश्रुत को, चरक को, और ऐसे और आयुर्वेद के जो ज्ञानी रहे हैं, उनको सत्य बोलने में कोई फर्क तो पड़ता है। इसी नाते वो स्वास्थ्य की जो परिभाषा दी है, वो क्या है, किसको आती है? आयुर्वेद में स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, कौन बताएगा? राम गोपाल जी, खड़े होकर बताइए। हाँ, अच्छा, हमें अब सीखा है। ना ना ना, ये क्या है? आप इधर आइए, उधर से आइए, एक बार और आइए। आप जोर से पढ़िए ऊपर वाला संस्कृत। इनको समझ पा रहे हैं आप लोग? क्या बोले हैं राम गोपाल जी, समझे आप लोग क्या बोले हैं? आप समझिए, आप आइए, खड़े होकर बोलिए। हाँ, उसे फिर से बोलो बेटा। हाँ, जोर से बोलो, बढ़िया बढ़िया, शांत होकर के, खुश होकर, पहले मुस्कुराओ। हाँ, आप बोलो। समदोष समानिष्ठ सम धातु मंत्रिय कृष्णात् में इंद्रियन प्रसन्नात में, प्रसन्नात् में यही ध्यान, दिमाग पर, प्रसन्नात में, आगे बढ़ो, प्रसन्नात् में में इंद्रिय, आगे, हाँ, उसको पढ़ो, उसको पढ़ो। प्रसन्नात् में इंद्रियन स्वस्थ इत विधीयते। स्वस्थ इति अभिधीयते। देखो, अगर मैं कहूं ये जल है, जल जाओ, तो ये जल है, जल जाओ। जल में और जल में स्पेलिंग का अंतर नहीं है। अरे वो जल और जल जाओगे, देखिए, लेकिन वो कहने का ढंग, एक होता है कि बचा रहे हो कि बेटा उधर मत जाओ, जल जाओगे। अरे वहां जाओ, ठंडा जल मिलेगा। तो वही शब्द है, उसको अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज करोगे, उसकी मीनिंग भी समझ रही है। इस नाते संस्कृत भाषा देव भाषा कही जाती है, और भारत की मौलिकता संस्कृत में ही है।
जो ओरिजिनलिटी है वो वही है। इस तरह से जब पढ़ो तो पूरा हृदय लगा। शंकर भगवान कभी पढ़े होंगे संस्कृत? आदि गुरु जरूर पढ़े हो। वागर्था विव प्रतिपत्तये। तो सम दोष अंग्रेजी में पढ़ो तो समझ जाओगी। अब अंग्रेजी पढ़ो तो पढ़ो बेटा। The doshas must be in equilibrium. The digestive fire must be in a balanced state, and the tissues, dhatus, and malas, waste must work in a normal state. The sensory and motor organs and mind, atma, must be also in a pleasant state. Such a person is called a healthy person. एग्जैक्टली। अगर मैं कहूं अपने मित्रों को, आप ये स्वास्थ्य की, मनुष्य के स्वास्थ्य की यही परिभाषा सबसे उत्तम लग रही है, सबसे उत्तम। क्योंकि जो पाश्चात्य है, जो पश्चिमी जगत है, उसने स्वास्थ्य की परिभाषा कुछ अलग ही दे रखी है। वो बाहर से तो साफ सुथरा दिखते हैं, लेकिन अंदर जो है वो साफ नहीं कर पाए। इस नाते कितना ही कमा लो, कितना ही इकट्ठा कर लो, अमेरिका सबसे संपन्न देश है ना। कैलिफोर्निया का नाम सुनी हो? कहाँ है ये? किस प्रशांत महासागर के किनारे? वहां कौन सी बड़ी सिटी है? लॉस एंजलिस। हॉलीवुड का नाम कितने लोग देखे, सुने जाने? मूवी देखी हो कोई? हाँ, वही जो मुंबई बॉलीवुड जो है ना, बॉलीवुड पहले नहीं आया, हॉलीवुड पहले आया। वो दिशा उन सबों की। तो लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया की एक मेजर सिटी है। दूसरी मेजर सिटी क्या है? सैन फ्रांसिस्को। ओके। वहां चीजें बड़ी साफ सुथरी हैं, लेकिन वहां नदी को मां नहीं कहते, और अपने यहां गंगा मां, राइट? लेकिन सावधानी नहीं बरतते हैं, उसमें थूक देते हैं। अब यही है पैराडॉक्स, कहते हैं कि हम मां तो कह रहे हैं, मेरी मां, लेकिन मान नहीं दे पा रहे। तो इसको पैराडॉक्स कहता हूं। यही होता है, होता है समन्वय करना, इक्विलिब्रियम, सम दोष। दोष क्या है? क्यों नाम दिया गया दोष? कोई और बच्ची को क्यों परेशान कर रहा हो? कोई और खड़ा हो। हाँ, कौन है इसमें जो दोष के बारे में सोचा? ये इसी तरह से आप सोच रहे थे कि कुछ और क्यों मैं पढ़ के चला जाऊं। तो ठीक है, ये ठीक है। आप लोग कुछ सीख रहे हो मेरी बात से? ओके, जब सीख रहे हैं इसका मतलब हाथ उठाओ ताकि प्रिंसिपल साहब देखें कि आप लोग सीख रहे हो। हाँ भाई, उठ तो गया कहीं तो। कौन? कोई आप नहीं हाथ उठाए? हाँ। अगर हमारे क्लास में आ जाएंगे बीएचयू में ना, तो मैं आपको हाथ उठवाता ही रहूंगा। तो आपका नाम क्या है? हाँ हाँ, मैं समझ गया था। यादव जी लोग बहुत ही सॉलिड होते। तो संजय यादव जी, ये जो दोष है, दोष के बारे में जानते हैं क्या? विकार उत्पन्न करे। आपका जीवन भी तो इस दोष पे ही आधारित है। कौन कौन से दोष हैं? वात, पित्त, कफ। और ये आपकी मां के गर्भ से मिलता है। जो मिल गया वो मिल गया, उसमें आप जीवन शैली से इसको प्रभावित करते हो। अगर आप अपने मां के गर्भ वाले दोष को इक्विलिब्रियम में बनाए रखें तो बीमार नहीं पड़ेंगे, वो प्रिवेंटिव रहेगा। तो सम दोष, इसका मतलब क्या हुआ
कि दोष को इक्विलिब्रियम में बनाए रखो। समाग्निश्च, कितनी अग्नियों का नाम सुने हैं आप? हाँ बताइए, यादव जी बताइए आप। उसमें एक सबसे प्रमुख अग्नि जिसको हर रोज आप अपने जीवन में उपयोग करते हैं, वो बताइए। जठरा अग्नि। अगर आपका पूरा जीवन ही आपकी जठराग्नि पे डिपेंड कर, और वो अगर ठीक न रहे तो आप बीमार पड़ सकते हैं। तो जठराग्नि के अलावा और भी अग्नियां हैं, आगे आपको जानकारी मिलेगी। लेकिन जठराग्नि जो है, अभी आपको भूख लगेगी। वो भूख क्यों लगेगी आपको? जठराग्नि के नाते। अगर आपकी अंगुली को पेट फाड़ करके मैं आपकी उंगली को उसमें डुबो दूं तो अंगुली गल जाएगी। क्यों? क्या? हाँ, HCl तो समझ गए आप। उसी को हमारे ऋषियों ने, आयुर्वेदाचार्यों ने जठराग्नि का नाम दिया। उसमें HCl ही नहीं है, उसमें ट्रिप्सिनोजन और ट्रिप्सिन भी है, काइमोट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिन भी है, और भी तमाम प्रोटीएजेस हैं। क्योंकि मीट कितने खाते हैं आप लोगों में? कितना मांसाहारी है? भाई अरे जो खाते हैं भाई। हाँ, तो वो मीट कैसे पचता है? वहां तो कुछ होना चाहिए ना, तो वो प्रोटीएजेस ही पचाते, ठीक है। और वो जठराग्नि उसका नाम दे दिया गया, ठीक है। तो और अग्नियां जो होती हैं वो भी जब इक्विलिब्रियम में रहती हैं, समाग्निश्च और सम धातु, इसको कौन बताएगा? सम धातु टिश्यूज जो होते, मतलब तो यही ना है कि वो भी इक्विलिब्रियम। एक्चुअली जीवन जो है ना वो इक्विलिब्रियम है। जीवन, बैठ जाइए यादव जी, आप भी बैठ जाइए रामगोपाल जी। जीवन इक्विलिब्रियम, और ऐसा आप पाएंगे कि अगर बैलेंस न रहे तो आपकी जीवन की गाड़ी उलट जाएगी। और प्रकृति चाहती है, प्रकृति मनुष्यों को क्यों बनाई, कौन बताएगा? ये क्यों मनुष्य बना, इस प्रश्न का उत्तर कौन बताएगा? सृष्टि ने मनुष्य का निर्माण क्यों किया? अरे भाई हाँ बताइए। भगवान, भगवान कह रहे हैं, आप सृष्टि में पूछा हो। हाँ सृष्टि। क्या बात है, क्या बात है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़े संत हुए हैं जिनका नाम अरविंदो है। अरविंदो का नाम सुने हैं? महर्षि अरविंद पढ़े हैं? उन्होंने एक सिद्धांत आगे बढ़ाया था कि ये एक सृष्टि अति चेतन मनुष्य का निर्माण करना चाहती है। अति चेतन, तो हम एक जीवित उपकरण हैं सृष्टि के लिए। हमारा जो जीवन है एक जीवित उपकरण है जिसमें प्राण चल रहा है। और वो हमें तरह तरह के विक्षेपों से गुजारते हुए, तरह तरह की संस्कृतियों में पालते पोसते हुए एक अच्छे मनुष्य का निर्माण करना चाहती है, जो भविष्य में सृष्टि के उद्देश्यों के अंतर्गत कार्य करे। और आयुर्वेद का जो अन्वेषण हुआ था वो उसी दिशा में एक उत्तम प्रयास था, अभी भी है, अभी भी चल रहा है। तो अगर इस तरह से हम अपनी मल क्रिया को, इंद्रियों को बैलेंस करते हुए अपने मन को प्रसन्न रखें और मन के साथ
जो प्राण तत्व है, आत्मा है, मॉडर्न मेडिसिन में आत्मा को बिल्कुल किनारे कर दिया। आत्मा क्या? आत्मा नहीं, आत्मा क्या? क्योंकि वो जिस चीज को पकड़ लेंगे उसी को कहेंगे, मानेंगे। मन को तो आप मानते हैं, क्योंकि वो भी खाते हैं, शराब पीते हैं, मिठाई खाते हैं, कैंडी खाते हैं। हम भी, हमारा मन करता है खाने के लिए। मन को समझते हैं आप? मन क्या है? कहाँ जा रही हैं अभी? तो आपको तो आप भोजपुरी बोल के जाइए। आइए आइए। मन का है? नहीं, मन का है बताइए। मन मन अतीन्द्रिय। ओके, बढ़िया बढ़िया। क्योंकि भोजपुरी में किसी बोलो हमार मन करत बा आज रसगुल्ला खाए खातिर। हाँ? हाँ? हाँ, तो फिर वो तो गड़बड़ है। हाँ, चलिए तब आप जाइए। हाँ बोला। चिकन खाइबा? हाँ, ठीक है। तो बढ़िया है, आप मन करता जाके खाइएगा आज। हाँ? आपको पता है ना चिकन खाने से क्या क्या परेशानियां आएंगी? हाँ? तो मैं आपको सावधान कर दे रहा हूँ, चिकन मत खाइएगा आज। मैं डॉक्टर बन रहा हूँ आपका। मैं डॉक्टर हूँ नहीं, लेकिन चिकन से दूर हटिए। हाँ, उसकी अगर कोई चीज खानी है तो वो जो बोलता है, नाचता है, चुंगता है, उसको खाइए। लेकिन बिना चिकन खाए रहे नहीं है। चिकन खाने से आपको संतोष मिलता है ना, बताइए। हाँ, और शराब भी पीते हैं, उसके बाद शराब भी पीते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक सफिशियंट है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड सफिशियंट है आपके लिए, कि उसमें एथेनॉल भी डालना पड़ता? नहीं, हाइड्रोक्लोरिक सफिशियंट। अगर उसमें एथेनॉल डाल दिया जाए तो और मजा आ जाएगा। नहीं, ठीक है। आप ऐसा करिए, मैं तो भाई वेजिटेरियन हूँ, और सोचिए 28 साल कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में इस नाते रह पाया कि वहाँ बादाम है, अखरोट है, पिस्ताचियो है, संतरा है, गेहूं है, और जितना फल चाहिए सबसे सस्ता। हमें देखिए, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ कैलिफोर्निया का, लेकिन आपको 25 पैसे में 1 किलो अंगूर मिल जाए तो खाएंगे ना? और वही बढ़िया मीठा वाला, इतना बड़ा बड़ा। और बादाम मिल जाए खाएंगे, पिस्ताचियो मिल जाए खाएंगे। तो यही सब है वहां, पूरी की पूरी घाटियां हैं जो अखरोट से लदी हुई। लेकिन मनुष्य ने जाकर के वहां शराब बनाना शुरू कर दिया। तो वहां लंबी दूरी तक शराब की कंपनियां हैं कि अगर एक छोर से आप टेस्ट करें तो दूसरे छोर तक निकलते निकलते आप टुन्न है, वो टेस्ट कराएंगे आपको। तो आपको वहां जाना चाहिए। किचन, वहां केंटकी फ्राइड चिकन भी मिलता है। नाम सुने हैं केंटकी फ्राइड चिकन का? बनारस आइए, वहां खुल गया। शंकर भगवान नाराज हुए थे, लेकिन क्या करें, आज जरूरत हो गई है केंटकी फ्राइड चिकन की। है? तो शराब पियेंगे वैसे आप, अगर आप लगातार चिकन खाएंगे तो शराब पियेंगे एक दिन, मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, ज्योतिषी नहीं हूँ, जरूर करेंगे। तो बैठिए, आपका नाम क्या है? सुनील विश्वास। अच्छा, ओके, आइए आगे बढ़ते रहे तो समय गुजर जाए। तो देखिए, आयुर्वेद की जो स्वास्थ्य की परिभाषा है, वह अब तक के जितनी भी मेडिकल सिस्टम है, इस कदर से कोई परिभाषित नहीं किया है मनुष्य के स्वास्थ्य। इसमें बताया है कि क्या क्या करें जिससे आपकी इंद्रियां प्रसन्न हो, आपका मन प्रसन्न हो। वही इंद्रियां प्रसन्न है, मन, भाई इंद्रियों के रास्ते ही तो मन प्रसन्न होगा। अब इनके पेट में चिकन जाएगा तो पचेगा, पचने के बाद जो चिकन का प्रोटीन होगा इनको मिलेगा। अब इनका मन जो है,
और चिकन का जो लेग होता है उसमें तमाम बैक्टीरिया भी जाते हैं, उसको माइक्रोबायोम कहते हैं, अभी मैं समझाऊंगा आपको। तो वो बैक्टीरिया आपको खुश रखते हैं, मुझे पूरा पता है। तो देखिए, जहां मन, शरीर, तन, मन और आत्मा, ये तीनों प्रसन्न हो, वो मनुष्य स्वस्थ मनुष्य। और इसमें केवल शरीर प्रसन्न हो और मन जो है रुग्ण हो, यानी गाली गलौज कर रहे हैं, और आत्मा रूप से हमेशा उदास है ना, तो वो स्वस्थ मनुष्य नहीं। तो आयुर्वेद की सबसे बड़ी खूबी है, इंटीग्रेटेड मेडिसिन में संभावनाएं हैं कि हम ये सारी स्वास्थ्य की परिभाषाएं पूरा कर दें। इसी नाते आप एक सही रास्ते पे चल रहे हो आप लोग। आयुर्वेद सबको समाहित करते हुए आगे बढ़ता है, और जो कि जिसकी स्वास्थ्य की परिभाषा ही इतनी उत्तम हो, वह तो सारा कुछ उसी स्वास्थ्य की परिभाषा के निमित्त ही तो करेगा। जहां आपका मन प्रसन्न हो, आपकी आत्मा प्रसन्न हो और शरीर निरोग रहेगा, तभी आप हो पाएंगे। यानी प्रिवेंशन आपको अपने जीवन में जीना पड़ेगा, और योग जो है प्रिवेंशन ही है। हा? तो योग को जीवन में उतारिए। और ये मेरी खिचड़ी है, मेरे जीवन की खिचड़ी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस, चार्ल्स ड्रू यूनिवर्सिटी, इसमें हार्वर्ड को नहीं डाला, और आइंस्टीन कॉलेज ऑफ मेडिसिन न्यूयॉर्क, इन सारी जगहों पे मुझे अपने जीवन का कुछ समय गुजारना पड़ा है। बताया ना कि मैं बचा करके अपनी भाषा को ऐसे रख पाया हूं, और अभी भी उसको धारा प्रवाह बोलने की कोशिश करता हूं। अंग्रेजी तो बोलनी ही पड़ती है, वो वहां जाएंगे तो हिंदी से काम नहीं चलेगा, या भोजपुरी तो केवल उसका उपयोग अच्छी चीज के लिए कर सकते हैं कि किसी पे गुस्सा उतारना हो तो भोजपुरी का यूज कर लीजिए, तो कोई समझ भी नहीं पाएगा। चुटकुला गाय सुनती है तो हंसती तो है नहीं, गाय हंसती है चुटकुला सुनाने पे, वो भाषा ही नहीं समझ रही है तो क्या हंसे। तो एनीवे, ये खिचड़ी है मेरे जीवन की। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। समय कितना है हमारे पास अभी? हाँ, 1 आवर है। आप लोग बोर हो गए हो? कोई बोर नहीं, डॉक्टर साहब बोर नहीं हुए, तो आगे बढ़ाते हैं। देखिए, मेरा रिसर्च है ये, मैं जल्दी जल्दी, मैं आयुर्वेद की, देखिए एक प्रोसेस है आपकी शरीर में, एक इसको मैं अभी आ रहा हूँ। इसको कितने लोग पहचान पा रहे हैं? क्या है ये? क्या है ये? एक मनुष्य का कंकाल है जो चिकन खाता रहा होगा कभी। हाँ, दूसरा जो है उसका सर्कुलेशन सिस्टम है, जो कभी चिकन खा के मजबूत किया होगा उसको। और एक मांसपेशियों के साथ खड़ा मनुष्य है जिसको चिकन के प्रोटीन ने मांसपेशियों को मजबूत किया होगा। और उधर जो है जहां चिकन पहले गया होगा, हाँ, इसमें एक चीज नहीं दिखाई दे रही है जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं। कितने लोग इम्यून सिस्टम को जानते हैं? हाँ बताओ, कौन मुझे समझा पाएगा कि इम्यून सिस्टम है क्या? हाँ? बताइए, आप बता, आप ही बोल रहे हैं, बताइए इम्यून सिस्टम क्या है? हाँ, ओके, ठीक है, ठीक है। आप समझे हो कुछ, लेकिन वो अलग दिशा वाला समझ गए।
आपके पास ब्रेन कितना है? और मैं कहूँ 2 ब्रेन, नहीं स्पाइन वाला तो वो उसी ब्रेन का हिस्सा है। हाँ, कोई और बताए कि, हाँ बताइए, उनको दे दीजिए माइक्रोफोन, उनको दीजिए। Sir, immunity is the ability of our body to defend against a foreign bodies or pathogen. हाँ ठीक है, वही जो ये कहे रोग प्रतिरोधक क्षमता को हैंडल करने वाला इम्यून सिस्टम जो है, हिंदी में रोग प्रतिरोधक व्यवस्था कह सकते हैं। एक ब्रेन की तरह काम करता है, ये पेरिफेरल ब्रेन है आपका। एक ब्रेन ये है जो राजेश खन्ना को पहचानता है, कभी नहीं राजेश खन्ना, आजकल तो दूसरे सब आ गए हैं, क्या नाम है, जैकी टाइगर श्रॉफ, हाँ वो मसल पावर लिए हुआ है, टाइगर श्रॉफ को पहचानता है ये ब्रेन। और आप जिस घर में रहते हैं उसको पहचानता है, आप अपना नाम जानते हो इस ब्रेन से। और भी तो आप जैसे गाना गाते हैं, गाना कहाँ स्टोर होता है? बर्फी खाए हैं, मिठास कहाँ लगती है? पहली मिठास कहाँ शुरू होती है? अरे जीभ से। हाँ, उसके बाद कहाँ जाती है? ब्रेन में जाती है कहीं। मान लीजिए आपको ज्ञान है इस न्यूरोलॉजिकल सिस्टम का कि बर्फी खाए नहीं, वो रिसेप्टर्स जो बर्फी के कंपोनेंट्स को इंगेज किए और उसके बाद वो न्यूरॉन्स जो उस रस को लेकर के जहां प्लेजर सेंटर में लेके चले गए, अगर वो भी जानकारी रहे आपको तो सुहाना सफर हो जाएगा नहीं बर्फी का। एक तो खा रहे हैं बर्फी और उसके बाद इंजॉय कर रहे हैं जैसे वो जा रही है शरीर के अंदर। तो चिकन खाते हैं, मान लीजिए चिकन खाने पे जो चिकन का सेटिस्फैक्शन है वो ब्रेन रिकॉग्नाइज कर लेता है, जरूर करता होगा, तभी चिकन खाते हैं। और नहीं तो मेमोराइज भी कर लिया है, आपका गट जो है वो मेमोराइज कर लिया है चिकन प्रोटीन को, और आप अगर खाएंगे नहीं तो वो आपको खूने देगा कि आज चिकन खाना है, आपको चिकन खाना है। और अगर आप उसमें वो भी एथेनॉल भी डालेंगे तो कहेगा कि आज बहुत बढ़िया सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडे, अरे बर्थडे का ओकेजन है और चिकन और एथेनॉल मिलाते हैं। और ये फार्मूला जो है वो समदोष को डिस्टर्ब करेगा। तो वैसे आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं चिकन खा करके। कोशिश करिए कि लौट आइए। मुझे आपकी शरीर वो चिकन के प्रतिरूप जा रही है, मतलब डाइजेस्टिव जठराग्नि आपकी बहुत तेज होगी, ऐसा मुझे लगता है। एक ब्रेन ये है जो चिकन को चिकन की तरह रिकॉग्नाइज करता है, और दूसरा ब्रेन आपका इम्यून सिस्टम है, पेरिफेरल ब्रेन। ये हमारा सबसे बड़ा बायोसेंसर, इट इज वन ऑफ द बेस्ट बायोसेंसर। और ऐसा बिलीव किया जाता है जो प्रसन्न मन है, अगर आप प्रसन्न हैं, खुश रहते हैं हर रोज, तो आपका इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है वो। कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो हर चीज को नेगेटिव देखते हैं, ऐसे लोग मिलते हैं कि नहीं जीवन में, हमेशा कुछ शनाब करते रहते हैं। उनका इम्यून सिस्टम अपने ढंग का होगा, वो उनका पेरिफेरल ब्रेन। और जितनी भी बीमारियां होती है, कोरोना आता है पहले क्या करता है, वो इम्यून सिस्टम को ही पहले अटैक करता। HIV है, आप बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए।
इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, वो अधिकांश जो वायरसेस है वो इम्यून सिस्टम को ही पकड़ते हैं, कुछ ब्रेन को पकड़ते हैं, जैसे इंसेफेलाइटिस हुई। तो बायोसेंसर जो हमारा इम्यून सिस्टम है वह एक पेरिफेरल ब्रेन है। अब ये मॉडर्न मेडिसिन या मॉडर्न बायोलॉजी ने इस भाव को ले आया है, लेकिन जो परिभाषा दी गई है स्वास्थ्य की, उसमें अगर इसको कनेक्ट कर दिया जाए तो आपको पता चल जाएगा कि पेरिफेरल ब्रेन में इम्यून सिस्टम अगर आप प्रसन्न हैं, बैलेंस्ड है, तो आपको बीमारियां या व्याधि क्षमत्व आपका बहुत ज्यादा विकसित हुआ, तो आपका पेरिफेरल ब्रेन जो है बैलेंस्ड, समझ रहे हैं। इसी की बीमारियां, इम्यून सिस्टम की बीमारियां ही आजकल अपने समाज में और विदेशों में तो बहुत ज्यादा फैली हुई है। इसमें एक इम्यून सिस्टम का एक गुण होता है इन्फ्लेमेशन। कितने लोग जान रहे हैं इन्फ्लेमेशन? मच्छर काटा है आपको कभी? कितने लोगों को मच्छर काटा? मच्छर काटा है ना? कभी चोट लगी है चाकू से, हथौड़ा से, ईंटे से, पत्थर से, ढेला से? लगी हुई जरूर, या नहीं तो पेन को ही कोच दिया होगा। अब बचपन में तो कभी कभी होता है, झगड़ा होता है, कोच देते हैं पेन, तो ऐसा हुआ होगा। तो पहले क्या होता है, लाल हो जाता है? वो क्यों लाल होता है? क्योंकि इम्यून सिस्टम काम कर रहा है। इम्यून सिस्टम काम कर रहा है, अगर वो काम न करे तो लाल ही ना हो। और लाल जब हो जाता है तो लाल होने के बाद वो ठीक हो जाता है। लेकिन आजकल हमारी जो जीवन शैली हो गई है, जिसमें हम खाते हैं बहुत बढ़िया खाना और यूज करते हैं ये, यानी हम खा करके सोफे पे बैठ के फेसबुक और व्हाट्सएप और क्या क्या है उसमें सब हिलाते डुलाते रहते हैं। आजकल तो 4 साल के बच्चे भी वो खोल के अपना फटाक से निकाला, वो हाथी वाला गाना लगा लिया। हाँ? कौन सा गाना है हाथी वाला? हाँ, एक मोटा हाथी। अब इसके नाते बीमारियां हो रही है। मन की बीमारियां तो छोड़िए, शरीर की बीमारियां हो रही है। आप अरे सर्दी हो गई है हमको। हाँ, अब मैं ये कहना चाहता था कि अगर बैलेंस नहीं करेंगे आप अपने भाषा को, भोजन को और भाव, भाव क्या होता है? भाव क्या होता है? प्रेम क्या है? प्रेम एक भाव है। हाँ? सब्जी कभी भाव से खरीदे हैं आप लोग? कितने लोग साहब सब्जी खरीदे हैं भाव से? का भाव सब्जी भाव हो तो आप कभी बाजार में गए आप लोग? ये ऐसे सब्जी खरीदे हैं का भाव सब्जी भाव? एक मन चाहे कि दो मन चाहे? सोचिए, ये सोचिए। सब्जी पुराने जमाने में भाव से खरीदी जाती थी, और अधिक खरीदना हो तो एक मन खरीदते थे, 2 मन खरीदते थे। तो मतलब सारे जो हमारे पैमाने थे वो भाव से जुड़े हुए थे। अब आजकल तो थोड़ा बदल गया है, तो उसको आप लोगों को बचाना है। अगर बचाएंगे नहीं तो जो अच्छी चीजें हैं वो अभी इस बाढ़ में बह जाएंगी। अच्छी जो चीजें हैं वो बह जाएंगी, और हमारे पास बचेगा क्या? वही केंटकी फ्राइड चिकन। वो खतरनाक है, क्योंकि वो इथेनॉल जोड़ेगा। तो मैं ये आप लोगों को बताना चाहता था कि
एक जो इंटीग्रेटेड पावर है आयुर्वेद का, वो यहाँ से यहाँ समग्र दृश्य, समग्र दृश्य, समग्र चाहिए जरा। तो आयुर्वेद और एक साथ ही वो होलिस्टिक सारी चीजें और समस्त दवाओं का निर्माण किया। पहले तो अंध से ही चिकित्सक से ये मॉडर्न मेडिसिन को खाद निकाली और दाल का डिमेंशन जानती हो, उसकी खाल निकाल पाओगी? केवल मुहावरा है कि बाल का खाल निकाल रहे हो, और जब खाल मिल जाए तो खाल का बाल निकालो। भाई कोई चीज तोड़ते 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 चले जाओगे तो ज्ञान तो मिल जाएगा, लेकिन इस ज्ञान में बहुत कुछ खो दोगे। हाँ भाई, फूल है तो फूल को देखो, तो उसको तोड़ने से ही सब कुछ हो जाएगा, तोड़ के सब समझ लोगे। ठीक है, वो भी सही तरीका है, तोड़ करके समझ जाओगे तो मानवता की सेवा अच्छी हो जाएगी। वही हो रहा है आज का विज्ञान जो है, कि चीजों को तोड़ के समझ रहा है, तोड़ करके वह, जैसे इम्यून सिस्टम का है, इम्यून सिस्टम में सबको उधर से पंच महाभूत, पंच महाभूत का नाम सुनी हो? क्या होता है बताओ? तुलसीदास जानती हो? उन्होंने कुछ लिखा है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह बनल शरीरा, कुछ ऐसा ही है। तो क्षितिजल पावक गगन समीरा क्या है? हाँ, पहला बताओ, जो सबका बाप है। पंच महाभूतों में एक सबको समाहित किए हुए है। क्या है? आकाश। आकाश का दूसरा नाम क्या है? आकाश का पर्यायवाची बताओगी? आकाश का पर्यायवाची, 5 पर्यायवाची बताओ। गगन, नभ, गगन, शून्य, अनंत। और आकाश है क्या? मतलब आज की वैज्ञानिक दुनिया में आकाश है क्या? कुछ नहीं है, आंखों का धोखा है। कहेगा तो आंखों का धोखा है। हुआ क्या कि एक स्पेशल जो रेज है वो रिफ्लेक्ट होकर के चली गई, वही दिखाई दे रही है, कुछ है नहीं। तो वो भी कह रहे हैं शून्य है, कुछ है नहीं तो मतलब शून्य है, राइट? और हमारे यहाँ तो शून्य उसका नाम ही दे दिया गया, गगन नभ अनंत शून्य व्योम। व्योम का नाम सुनियो, व्योम। व्योम का संधि विच्छेद कौन कर पाएगा? संस्कृत है, संस्कृत पढ़ने जा रही है, मौलिकता आयुर्वेद की संस्कृत में है। व्योम का संधि विच्छेद एक ये भी हो सकता है, बी धन योम, व्योम ओम, बी धन ओम व्योम। और बी का मतलब विशेष हो सकता है, जो विशेष ओम है उसमें, वही व्योम है, समझ रहे?
तो वहां ओम को कितने लोग जानते हैं? अरे ओम कोई बैठा है इसमें? कोई ओम नहीं है यहाँ। राम गोपाल है और कृष्ण भी नहीं है यहाँ, और ओम नहीं है कोई। अच्छा, तो यहाँ और इम्तियाज जी हैं, सलाहुद्दीन नहीं है, ओके, मुमताज, ओके, तो ठीक है, विशेष योम व्योम होता है, ठीक है। कितनी देखो, जब जब कायदे से दिमाग लगा करके उस चीज को देखोगे ना, तो उसमें से विशेष अर्थ निकलेगा। और अर्थ का मतलब क्या होता है, आप बताइए, दाढ़ी वाले बाबू, अर्थ का मतलब क्या होता है? हाँ, ये क्या अर्थ होता है? गोल घर में कौन सा अर्थ काम करता है? गोल घर में कौन अर्थ काम करेगा? ऐसा वाला, वो अर्थ, उसके वहां की जो चीजें हैं उसी अर्थ से समझ में आएगी। यहाँ ज्ञान का बात, ये हम कोई शब्द है, शब्द की महिमा तभी है जब उसका अर्थ उसके साथ हो। यानी बिना अर्थ के अगर शब्द आप जानते हैं तो आप समग्रता से उसका भोग नहीं कर रहे। तो शब्द अगर आप बोल रहे हैं तो कोशिश करिए कि उसके अर्थ को जानिए, तभी आप संपन्न हो पाएंगे। और अर्थ जो है, सड़क की भाषा में गांधी जी से छपा हुआ नोट या पैसा है, और ज्ञान की भाषा में कि जो समदोष समाग्निश्च, वो जो लिखा हुआ है उसका अर्थ समझिए। जब उसको समझ जाएंगे आप, तो आप धनी हो जाएंगे। अब इसके पास अर्थ है, वही तो धनी है। क्यों? तुम्हारे पास अर्थ आ जाए तो कितना अर्थ चाहती हो? मैंने कहा कितना अर्थ चाहती हो? करोड़पति बनना चाहती हो? हाँ, एक उद्देश्य ये भी होगा पढ़ाई लिखाई का कि मर्सिडीज बेंच चलाना चाहती हो, तो कुछ है ऐसा उद्देश्य तो होगा। हाँ, विदेश में जाना चाहती हो, नहीं, तो अर्थ तो वहां बहुत ज्यादा, वो अर्थ नहीं चाहती हो, तुम ज्ञान का अर्थ चाहती हो। हाँ, तो ठीक है, तो बड़ी अच्छी बात। मैं तो राय दूंगा कि सभी लोग विदेश जाओ, घूम के आ जाओ, उनका अर्थ जो है अपने ज्ञान के अर्थ के साथ मिला लो। ठीक है, बैठिए, आप भी बैठिए। हाँ? समग्रता का मतलब समझ गए आप लोग? क्या क्या अभी आप ये महसूस कर रहे हैं कि आप इस अंतरिक्ष की एक बूंद हैं महासागर की? जब अंतरिक्ष नाम दे रहा हूं, ब्रह्मांड नाम दे रहा हूं मैं, तो क्या आपकी दृष्टि में आ रहा? अरे पूरा का पूरा तो आकाश गंगाएं हैं। चिल्लू पार तो उसका एक छोटा सा अंश है, पता भी नहीं चलेगा। धरती इतनी बड़ी दिखती है, आकाश मतलब अंतरिक्ष में धरती इतनी बड़ी, तो मच्छर का एक रोआ भी नहीं है, तो बहुत छोटा। अगर मैं ये कहूं कि ये जो हमारा सौर्य मंडल है, ऐसे करोड़ों सौर्य मंडल, तो आप विश्वास करेंगे? करेंगे ना? सोचिए, ये तो पहली कि आपको ज्ञान है आकाश गंगाओं का, और हम जिस अंतरिक्ष में या जिस स्पेस में रहते हैं, ऐसे और भी कई हैं। क्या आपको पता है कि सूरज जो है, अपना सूरज, जिसकी माता या पिता जो कहें आप, धरती का माता पिता सूरज ही है, तो वो, उसका भी कोई पिता है या उसका भी कोई माता है, उसकी परिक्रमा कर रहा है। सूरज सब अपने संतानों को साथ में लेकर के परिक्रमा कर रहा है। इसी तरह आपके शरीर में भी परिक्रमा हो रही है। और हमारे यहाँ एक मंत्र है, मंत्र ही कहता हूं, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे। कितने लोग जानते?
नहीं सुना है आप लोगों ने कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, यानी जो हमारे अंदर है वही इन सारी आकाश गंगाओं में और अंतरिक्ष में ब्रह्मांड में रिफ्लेक्टेड है। समझ रहे हैं? तो आप एक बूंद हो, जैसे महासागर की एक बूंद में पूरा महासागर है ना, क्या ऐसा महसूस करते हैं आप लोग? इसे महासागर की एक बूंद अपने अंदर पूरा महासागर महसूस कर ले तो वह बेजोड़ नहीं हो जाएगी? वही तो हो रहा है यहाँ। परमात्मा रूपी महासागर के आत्मा रूपी बूंद हो आप। जब ये समझ जाओगे तो परमात्मा से अलग कहाँ हो। और जब इसको आप समझ जाएंगे तो ये बीमारियां और सारे रोग और सारी चीजें परेशानियां ये सब तो फंस गए हैं हम इसमें। और फंसे हैं क्यों? क्योंकि हमें जीवन शैली की चिंता हो गई। जीवन शैली ये कि हम डॉक्टर बन जाए, जीवन शैली ये कि हम बहुत बड़े धनी हो जाए, जीवन शैली ये कि मतलब हमारे पास सब कुछ, जो समाज ने निर्मित कर रखा है उसमें फंस जाते हैं। तो बीमारियां इससे भी पैदा होती। और आप लोग सही जगह पे हो। आयुर्वेद के तमाम उत्तम सिद्धांत अगर ठीक, पहले तो उसकी परिभाषा, स्वास्थ्य की परिभाषा को ही नित्य रटिए, वो समदोषः वाला पूरी तरह से रट डालिए और उसको अपने जीवन का उद्देश्य बना लीजिए, तो आप अपने को ठीक रखेंगे। और गायत्री परिवार क्या कहता है कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। आप सुधरिए जग सुधर जाएगा। तो कोशिश करिए कि आयुर्वेद की जो समग्रता की दृष्टि है उससे दुनिया में कुछ भी जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए किया गया है वो कहीं ना कहीं उस सिद्धांत से आकर के मिलेगा, उस सिद्धांत से आके मिलेगा। आप लोगों को नए सिद्धांत गढ़ने पड़ेंगे। जब नए सिद्धांत बनाएंगे तो आप में से कोई चरक जैसा हो जाएगा। कोई नाम सुना चरक और सुश्रुत का? क्या आप में से कोई उनके जैसा बनना चाहता है? उनको बनने के लिए क्या करना पड़ेगा ये बताइए। क्या करना पड़ेगा? पहले तो आपको साधु होना पड़ेगा और आपको यायावर जिसको कहते हैं कि चल पड़ो जंगल में, कहां कहां से ढूंढे होंगे। सोचिए कि पहला आदमी रहा होगा जिसने धनिया पहले खाया होगा, पहला आदमी, पहला जो धनिया को छुआ होगा तो डरा होगा कि नहीं, कहीं जहर तो नहीं है। हम चिंता करते हैं उस पहले आदमी की जो पहले धनिया खाया होगा, या जो पहले अदरक खाया होगा, या पहले जीरा खाया होगा। क्योंकि इतनी बार मनुष्य खा चुका है कि अब कोई खतरा है नहीं, कोई खतरा नहीं जीरा खाने में। और चिकन के साथ भी प्रयोग हो गया है, इतना खा चुके हैं कि अब कोई खतरा नहीं है। मतलब अगर इन्फेक्टेड है तो वो भी कुक हो जाएगा, खतरा नहीं है, कुछ खतरा नहीं। तो लेकिन एक बात बता दूं, अगर आप दूसरे रास्ते पे जाते हैं जहां अन्नाहारी होते हैं तो निश्चित तौर पे आप एक बेहतर अनुभूति करेंगे। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं वेजिटेरियनिज्म को, लेकिन अच्छा महसूस करेंगे अगर आप जो चिकन वाले हैं वो लोग आयुर्वेद में शायद खिलाते भी होंगे, चिकन भी खाते हैं। लेकिन चूंकि मैं वेजिटेरियन हूँ इस नाते मैं सोच रहा हूँ कि एक वेजिटेरियन और हो जाए। हाँ? तो वैसे आप चलिए, हम भी आएंगे कभी, आपसे मिलेंगे, चिकन का आनंद लेंगे। हाँ।
देखिए ये है आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट में शरीर को अगर मैप किया जाए तो लोग कोशिश किया है कि ये बात पित्त कफ कहाँ रहता है। आप लोगों को पता है बात पित्त कफ कहाँ रहते हैं? पूरे शरीर में रहती है। लेकिन डॉक्टरों ने, आयुर्वेद के विद्वानों ने ये पता करने की कोशिश किया है कि बात कहाँ है, पित्त कहाँ है या कफ कहाँ है। तो ऐसा अमूमन पाया गया है कि जो कफ है वो तकरीबन पूरे शरीर के पेरिफेरल सिस्टम में कफ है। तो जो पित्त है वो लिवर में है, स्प्लीन में है, गॉल ब्लैडर, स्टमक, पैंक्रियास। और बात जो है वो आपके लार्ज इंटेस्टिन और स्मॉल इंटेस्टिन। अब ये पूरी तस्वीर नहीं होगी, आगे की तस्वीर आप लोगों को स्पष्ट करनी पड़ेगी कि प्रिसाइजली कैसे बात जो है पित्त और कफ को बैलेंस करता है। और बात क्या नापा जा सकता है? क्या कोई बैलेंस बनाई जा सकती है जिसपे हम किसी मनुष्य को रखें और कहेंगे कि ये बात वाला मनुष्य है? किसी बैलेंस पे रखें, उसको बताया कि ये तो पित्त वाला मनुष्य है। अब सोचिए अगर आप लोग ऐसी डिस्कवरी करते हो तो आयुर्वेद की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस तरह से ऐसा सोचिए कि हम क्या ऐसी कोई चीज करें जिससे कि दोषों को नाप लिया जाए। अभी केवल प्रश्न पूछ के नापते हैं, तो प्रश्न पूछने में तो तमाम समय लोग गलत उत्तर भी दे देते हैं। वो सही तरीका नहीं। सही ढंग से अगर कोई मशीन बना दिया जाए, जो आजकल पाश्चात्य विज्ञानियों के पास नहीं, तो उसको कैसे नापा जा सके। और अगर नाप लेते हैं तो सोचिए ऐसा मनुष्य तो वो एक दिन में करोड़पति बन जाएगा, अरबपति बन जाएगा। अगर कोई बना दिया इसको तो आप तो रातों रात अरबपति हो गए, अडानी हुए। तो अगर अडानी बनना चाहते हैं तो एक ऐसे मशीन बनाओ जो पंच महाभूतों को नाप पाए। एक ऐसी मशीन बताओ जो दोषों को नाप ले, और या ऐसी मशीन बनाओ जो अग्नि को पहचान ले कि आपकी जठराग्नि चिकन वाली है कि मसाला डोसा वाली है, ये पता कर ले। तो ऐसी मशीन बनाने के लिए सोचो। और आने वाले दिनों में अभी आप लोगों को और शिक्षा मिलेगी ऐसे ही। अब देखिए ये भी बताया गया इसमें, हमारे यहाँ एक है आयुर्वेद में पंचकर्म। पंचकर्म का नाम सुने आप लोग? ओके। पंचकर्म में फायदा ये है कि शरीर के किसी चीज को फाड़ा नहीं जाता है। वो जैसे कभी मालिश की है आप लोग घर पे? कभी बुकवा बुकवा कहते हैं ना, बुकवा जो होली के समय लगाते हैं, बुकवा लगोले बड़ा घर पे तुम्हारी माई लगावे ली। हाँ, बुकवा कैसे बनाला? अरे वो बुकवा दिया है मैं, बुकवा लगाला ना, बुहा में हाथी ओटी लगाओ जला। हाँ? ओके। तो बुकवा जो है ना वो आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुरूप ही अभ्यंग एक चिकित्सा होती है। अभ्यंग, जिसपे मेडिकेटेड ऑयल से शरीर में मालिश करते हैं और उससे वो है कहीं होगा ऊपर का जो सिस्टम है उसको नश्य कहते हैं। लेकिन कहीं किसी चीज के साथ आपको शरीर का कोई डिस्टरबेंस नहीं होता, केवल वो हाथ से जेंटल मसाजिंग या बमन मतलब ढकचना जो होता है, ढकच करके विरेचन और अधिक से अधिक जोंक जोंक जानते हैं आप लोग? जोंक से आपको रक्त का शोधन करते हैं। और उसी तरह से बस्ती का नाम सुने हैं आप लोग? बस्ती जो एनीमा का नाम सुने? हाँ, तो उससे जो नीचे का जो रेक्टम होते हैं उसकी सफाई करते हैं।
तो इसमें कोई बहुत ज्यादा दवाओं की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इसके करने से तमाम बीमारियां नहीं होती हैं। तो इसको आप लोग पढ़िएगा, ये आजकल बहुत पॉपुलर है विदेशियों में। खैर ये तो मैं आप लोगों को बताना चाहता था। देखिए ये है, अभी आप लोग क्या हो गया, आपकी उम्र 25 साल के इर्द गिर्द होगी। कितने लोग, कोई 25 साल का है इसमें? सभी 30 साल के हैं, 15 साल के हैं। कम उम्र का, सबसे कम उम्र का कौन है यहाँ? हाँ, राम गोपाल जी आपकी उम्र क्या है? हाँ, 20। राम गोपाल जी 20 साल के हैं। कोई इसमें 28 साल का है? 25 साल के कितने लोग हैं? 22 साल के, ओके। और 19 साल के? आप 19 साल के, 18 साल के, ओके। तो आप लोग सभी यंग हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये दिस इज वेरी नाइस। इस देश में, ये देश जो है, पूरी दुनिया इन 3 चीजों की मांग कर रही है इस देश से: हर्बल, डिजिटल एंड स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल में महायोगी गोरखनाथ के जो सिद्धांत हैं वो काम आएंगे। गर्भ न करिबा सहजे रहिबा, हाँ, तो उससे आपको बीमारी नहीं होगी, परेशानी नहीं होगा। हमें कौन घमंड करेगा हो, सहज रहेंगे। गोरखनाथ सिखा गए, गर्भ न करिबा सहजे रहिबा। और उसके बाद साच साच बोलो। हमारे देश में पुलिस व्यवस्था सच्ची है, सच्चिदानंद मिलता है वहां? कैसे मिलेगा? सच्चिदानंद कहाँ मिलेगा बताओ? जहां सत्य रहेगा वहीं तो सत्य का आनंद मिलेगा। तो हमारी पुलिस व्यवस्था सच्चिदानंद से नहीं काम कर रही, वहां सच्चिदानंद नहीं मिलेगा। और न्याय व्यवस्था, वो भी तो और भी है, तो वही है। तो ये सच्चिदानंद से बहुत दूर है। इनको सच्चिदानंद के अंदर ले आने के लिए अभी आप लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और जो पैसे लेते हैं, घूसखोरी करते हैं, वो भी तो सच्चिदानंद से दूर है। हाँ, तो ये आप लोगों को, मैं तो 66 वर्ष का होने जा रहा हूँ, 10-20 साल और रहूंगा, उसके बाद टिकट कट गया है, चला जाऊंगा। लेकिन आप लोगों को तो अभी 40 साल रहना है ना। तो इन 40 साल में कुछ पैसा कमाना है कि नहीं? पैसा कमाने के लिए तो राजा वशिष्ठ त्रिपाठी कह गए हैं कि हर्बल, डिजिटल, स्पिरिचुअल, इन तीनों का टैबलेट बनाओ। अगर ये टैबलेट बना दिए आप, मतलब टैबलेट मैं नाम ले रहा हूं, कुछ और बनाइए, पैसा मिलेगा आपको, पैसा मिलेगा। हर्बल, डिजिटल, स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल में जहां आप हैं, बैठे हुए हैं, गर्भ न करिबा सहजे रहिबा, ये स्पिरिचुअल है भाई। कबीर दास, कितने लोग गए मगहर में? कितने लोग गए? हाँ, मगहर गए हो? कहाँ है मगहर? बनारस है? तो उलट गए आप। अरे गोरखपुर के बगल में है मगहर। गए कबीर, संत कबीर में उनके नाम पे, उन्हीं के बगल में, खलीलाबाद के पास मगहर। काशी में रहते थे तो कोई कह दिया कि काशी में मरने से स्वर्ग मिलता है, तो कबीरदास एक झक्की आदमी कहे हम मगहर में जाकर मरेंगे। हाँ? कबीरदास की कोई एक चीज बताओ जो भाव से जोड़ती हो, वो दवा है, भविष्य की दवा है। कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। आगे क्या है?
प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। आगे क्या है? अब सोचिए, ये लोग, आप सबसे बड़ी बड़ी मंत्र तो आप लोग जानने की कोशिश करिए, क्योंकि यही आने वाले 100 सालों में अगर ये धरती या संसार बचा, अगर ये एटम बम वाला युद्ध नहीं हुआ, तो जानते हैं मनुष्य क्या ढूंढेगा? खुशी का टैबलेट, खुशी का कैप्सूल। कल्पना करिए, एक मूवी बनाइए, आप में से कोई एक इंटीग्रेटेड मेडिसिन की मूवी बनाओ कि एक दुकान ऐसी खुली है जहां शाम को जाओ थक हार के तो खुशी का एक कैप्सूल मिलता है। आपको 1 ग्राम चाहिए कि 10 ग्राम चाहिए? बस बताओ, 1 ग्राम चाहिए खुशी का कैप्सूल? 1 ग्राम खुशी चाहिए कि 10 ग्राम चाहिए? कुछ लोग कह रहे हैं हमको 1 किलो वाला चाहिए। वहां भी वो तो मनुष्य का स्वार्थ तो आएगा ही, लेकिन अगर हम जान जाएं कि हम खुश क्यों होते हैं और खुश कैसे हो सकते हैं, वो सब वही है, तो उसको टैबलेट में डालने की कोशिश होगी। अभी तो एथेनॉल से पता चलता है कि खुश हो जाते, या चिकन खाते हैं तो खुश हो जाते, अभी तो इससे पता चल रहा है। या कितने लोग बर्गर खा के खुश होते हैं, बर्गर खा के खुश होते हैं। चिप्स, अरे पोटैटो चिप्स, वो अंकल चिप्स खाती हो बर्गर? हाँ ठीक है, तुम्हारी खुशी उसी से चलेगी। तो खुश होकर, जिससे अच्छा टैबलेट खाने से खुशी मिल जाए और कैप्सूल खाने से खुशी मिल जाए, तो बाजार में मिलने लगे तो लोग खरीदेंगे कि नहीं? खरीदेंगे। ऐसे ही भविष्य में अगर आप लोग स्पिरिचुअल कितने लोग समझते हैं? हाँ, अध्यात्म क्या होता है? अध्यात्म बताओ ना। ना ना ना, ये तो गलत। तो अध्यात्म का मतलब ये नहीं होता। नहीं नहीं, वो देखो, महायोगी गोरखनाथ ने योग की जो जटिलता थी उसको कम कर दिया। हमारे देश में क्या था? अष्टांग योग था। अष्टांग योग, उसका नाम जानते हैं क्या? योग की सीढ़ियां हैं, यम, नियम, आसन, और आगे प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो वहां पहुंचे तो गोरखनाथ देख रहे थे अपने समय में कि लोग यम नियम में ज्यादा उलझ जा रहे हैं, क्योंकि वो जटिल है, कठिन है। तो उन्होंने कहा कि आसन से शुरू करो, आसन से शुरू करोगे तो यम नियम फॉलो हो जाए। तो उन्होंने अष्टांग की जगह 6 पैथ योगा, खड़ांग योग निर्मित किया। समझ रहे? तो आप लोग एक नए योग का निर्माण करो जो फास्ट फूड की तरह से, मतलब 3 लेग योगा। हाँ, जैसे हैमबर्गर वाला वो, हाँ बना दिया, फास्ट फूड खा लिया, समय नहीं है तो एक ऐसा योगा बनाओ जो बहुत जल्दी सब लोग कर लें, और उसमें स्पिरिचुअल जरूरी भी है। इस फोन से फायदा हुआ है कि नहीं? अरे झगड़ा नहीं होता है प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म पे झगड़ा नहीं होता। सभी लोग अपने फेसबुक का लाइक देख रहे हैं, या वो फेसबुक या व्हाट्सएप पे मैसेजेस देख रहे हैं, तो सभी लोग अपना बैठे हुए हैं, कोने में लेकर के बैठे। कोई कोई पहले तो झूठ मूठ का तकरार हो जाती थी कि क्यों आप हमको हमारा बैग छुए, या आपके पैर से हमारा बैग लग गया, कुछ ऐसा होता है। लेकिन इससे एक फायदा हुआ है कि तकरार, घर में तकरार कम हो गई है। घरों में सब लोग कोने अतरे में बैठ के अपना बैठे हुए हैं, पता नहीं चल रहा है कहाँ है। तो इससे एक फायदा हुआ है। ऐसे ही कुछ ऐसा बनाओ जो स्पिरिट को, स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट को घर घर पहुंचा दे।
और वो मेडिकल इफेक्ट डाले। भाई आत्म तत्व की जानकारी हो जाए, आध्यात्मिक जो रास्ते हैं वह आपको यह बताने के लिए आगे बढ़ते हैं कि आप परमात्मा के अंश हो, आत्मा हो। तो इसको अगर आप डिजिटल मार्केटिंग से आगे बढ़ा दो है, तो अगर सभी लोग आपका यूज करना शुरू कर दें तो आपको पैसा मिलेगा कि नहीं? मिल जाएगा। अरे यूट्यूब पे खान साहब, खान डॉक्टर खान लेक्चर देते हैं। हाँ, डॉक्टर खान बढ़िया लेक्चर देते हैं। हाँ? तो वो सब चीजें चलती है। डॉक्टर शर्मा, यूट्यूब देखिए, आज के समय में अगर आपके पास प्रतिभा है, आपके पास प्रतिभा है तो एक्सप्रेशन के कई रास्ते, कोई रोक नहीं पाएगा। आप ये अंकल, एक बार अंकल डांस करते थे, डांस वाले अंकल, गोविंदा के गाने पे जो चला था, कौन सा गाना था आपको याद है? हाँ, आपके आ जाने से। हाँ, वो डांस कितने लोग करते हैं आप लोगों में? अरे चिकन वाले बाबू, आपके आ जाने से वो डांस करके यूट्यूब पे दिखा दिया उन्होंने, तो गोविंदा साहब भी डांस करने लगे उनके साथ। तो देखिए, जेनेटिक्स में, मैं जेनेटिक्स को ले आ रहा हूं, जो आपके जीन्स हैं, जीन्स सभी लोग जानते हैं जीन्स क्या है। आपके जीन्स कहाँ रहते हैं आपके शरीर में? हाँ, डीएनए में रहते हैं। वो डीएनए कहाँ रहता है? क्रोमोसोम, उसका घर क्रोमोसोम है। और क्रोमोसोम का घर क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का घर कहाँ है? सेल्स के अंदर। और सेल का घर कहाँ? अगर ये शरीर न रहे तो आप कहाँ रहेंगी? प्रश्न है ना। अगर ये शरीर न रहे तो आप रहेंगी कहाँ? आत्मा कहाँ जाएगी? इसी तरह समझाना है कि भाई जीन जो है क्रोमोसोम रहता है, क्रोमोसोम न्यूक्लियस में रहता है, न्यूक्लियस सेल के अंदर रहती है, सेल शरीर के अंदर। मतलब थोड़ा सा और भी है, टिश्यू है। जैसे एक लिवर सोसाइटी है, एक किडनी सोसाइटी है, एक जीआई सोसाइटी है, हार्ट सोसाइटी है। तो हार्ट के अंदर भी तमाम सेल्स है, उसमें बैक्टीरिया भी हैं। हाँ? आपको पता है कि जितनी आपके शरीर की सेल्स नहीं है, उसका कम से कम 10 गुना ज्यादा माइक्रोबियल पॉपुलेशन है आपके शरीर। आप जो पाउडर और क्रीम लगाती हैं कि नहीं? आप लगाती होंगी। उसमें कॉस्मेटिक्स जो है आपकी माइक्रोबियल पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करते हैं। माइक्रोबायोम का नाम सुनिए आप, क्या होती है? शरीर की जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन है वो आपकी सिग्नेचर है। जैसे जो एक एथलीट होता है, ओलंपिक में दौड़ता है या दौड़ती है, उसका माइक्रोबायोमिक सिग्नेचर अलग होगा किसी और से जो दौड़ता नहीं। तो अब एक नई फील्ड आई है जिसको माइक्रोबायोमिक थेराप्यूटिक्स कहते हैं। कि दही कितने लोग खाए हैं? दही सब खाए हैं ना। और मैं कहूं कि दही कुछ और नहीं, बैक्टीरिया सोल्यूशन है। आप लोग मानेंगे? हाँ, मानेंगे, दही है। और दही को कैप्सूल में कोई डाल दे, भाई उतनी दही, गीली गीली दही खाने की क्या जरूरत है? पॉकेट में रखो और एक कटोरी दही में 2 कैप्सूल डाल दिया। मेरे कहने में बैक्टीरिया ही है जो दूध को फटने के बाद या दूध को दही बनने के बाद बैक्टीरिया अपना पॉपुलेशन बढ़ा लेता है। तो अब कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि इतना दही खाने की क्या जरूरत है? और भाई
कोई सोचा होगा तभी तो भस्म वाला कॉन्सेप्ट आया होगा, नैनो वाला कॉन्सेप्ट आया होगा। उतनी देखो, मनुष्य जितनी दवाएं खाता है उतनी खाने की जरूरत नहीं। जितना हम कंज्यूम करते हैं उतना कंज्यूम करने की जरूरत नहीं। कुछ वैज्ञानिक ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि मनुष्य को खाने की जरूरत क्यों खाते हैं, ना खाएं, हम खाएंगे नहीं। अगर हम खाए नहीं तो क्या करेंगे, कैसे जिएंगे? कोई रास्ता है? कौन बताएगा? मान लो यहां से पेट काट के निकाल दिया गया, यहां से काटा, आपको अब खाने की जरूरत नहीं है, तो सड़क पे भीड़ कम हो जाएगी। चिकन भी खाने की कोई जरूरत नहीं, सड़क पे भीड़ कम हो जाएगी, होगी जरूर कम हो। कैसे कम होगी वो? हम एक ऐसा मनुष्य बनाएंगे जो 1 लोटा पानी पी के सुबह और सूरज की ओर पीठ होके खड़ा हो जाए, पीठ करके, उसका दिन भर का खाना बन गया। कैसे? अरे पौधे तो बनाते हैं ना, तो पीछे पीठ पे एक्सप्रेस करो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो पौधे की हरियाली है, क्लोरोफिल से पीठ पे एक्सप्रेस कर दो। टाइम है हमारे पास, खत्म हो गया, तो अब इसको बंद करते हैं। मैं बता दूं इसको, ये इस बात को बता दे रहा हूं, क्लोरोफिल को पीठ पे एक्सप्रेस कर दिया जाए जेनेटिक इंजीनियरिंग से, पेट की जरूरत नहीं पड़ेगी सिवाय पानी डालने की। पानी डाला, सूरज से क्लोरोफिल से कार्बोहाइड्रेट बनाया, कार्बोहाइड्रेट लिपिड बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, वो सब टूट टाट के बनाते रहेंगे। आपको खाने की जरूरत, और खाने की जरूरत खत्म तो आधी समस्या खत्म, और उसके बाद आप फ्री हैं। तब आप आत्म तत्व को पहचानिए। सही? तो मनुष्य कुछ ऐसे ही तमाम जो वैज्ञानिक हैं यही सोच रहे हैं कि हम खाते क्यों, हम अगर ये न रहे तो रहेंगे कहाँ। तो ऐसे 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 प्रश्न पूछिए जिससे कुछ नई चीजें उभर के सामने आए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बोर नहीं किया हूं मैं, बहुत सारी चीजें थी उसको बताने की कोशिश किया। अब आप लोग आइए, मैं आप लोगों के साथ एक तस्वीर लेना चाहूंगा अपनी, ताकि लोगों को दिखा सकूं कि मैं इतने होमो सैपियंस से मिल के आया हूं। देवेंद्र जी जरा बच्चों को छुट्टी कर देते हैं और उनको यही बुलाते हैं, और आप लोग सभी लोग आ जाओ तो क्लास, अगर कोई